Hello children, welcome to your English radio class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes, and you must be watching the videos also. Your studies are going well, and you must be knowing that in the previous video we have completed unit 17 of your superb English grammar book. हमने unit 17 complete कर लिया है. So in today's video we have to start a new unit. We will be doing unit 18 today. We will be starting unit 18, and the name of that unit is asking questions. Yes, this unit is about asking questions. Children, I am not going to ask you questions. In this chapter you will learn how to ask questions. Questions कैसे पूछते हैं. Children, this is also an important topic. You should know how to frame questions. आपको अगर आंसर पता है तो उसका क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना ये आपको आना चाहिए. तो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि some question words. We'll study about some question words. Let's read a few sentences and their answers also. Let me write some questions. Question is, how are you? Question is, how are you? तो इसका आंसर हम जनरली देते हैं I am fine, thank you, ऐसे ही देते हैं. ये बोलते हैं ना, आंसर क्या देते हैं हम? I am fine, thank you. This is what we generally give when somebody asks us, how are you? We say, I am fine, thank you. बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना. तो और एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं. अगर क्वेश्चन है, where is your book? Where is your book? तो आप क्या आंसर दोगे इसका? अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है वेयर इज योर बुक, यू मे से दैट माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज इन द बैग, या सॉरी टुडे आई हैव नॉट ब्रॉट माई बुक. ओके, हम किसी तरह का आंसर देते हैं. यू कैन आंसर एनीथिंग. माई बुक इज इन माई बैग. This is, it is up to you what answer you want to give. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है what are you doing, what are you doing, you may say that I am reading a story book, yeah, I'm learning the exercises of my English textbook, or I'm watching movie, I'm watching cartoon. Whatever you want to give, you can give answer. Okay, you can say I am reading. I am reading a story book, or whatever you want to say. Children, similarly, many questions can be framed. Why you were absent yesterday? Why you were absent yesterday? You may give any reason that I was not well, I was suffering from fever, yeah, I went to my aunt's marriage ceremony. Any answer you can give. When do you wake up? When somebody asks you, when do you wake up? आप क्या बोलोगे? I wake up at 5 o'clock in the morning, या 6 o'clock in the morning. Suppose the question is, who is your best friend? Who is your best friend? Then you will tell my best friend is so and so. आप किसी का नाम बोलोगे. Then इसी तरह से जो हमने words use किए यहाँ पर, जैसे how, where, what, who, ये क्या है? इनको ही हम कहते हैं question words. These are called question words. तो ये जो यूनिट है इसमें हम इसी तरह के question words पढ़ेंगे. ठीक है. Let me rub this. Now, as I told you, yes,
how, who, why, when, what, where, which, whom, whose, और भी कुछ वर्ड्स हैं आपके पास, है ना? ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हैं. दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स. हाउ, कैसे, हु, किसने, वाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, होम, किसने, हुज, किसका. ये सारे क्या है? दीज आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स. इन्हीं को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड. जब हम किसी से पूछते हैं ना, कौन, किसका, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, कौन, किसको, ये सारे जो हम हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं, उसी वैसे ही इंग्लिश में भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं. इंग्लिश में भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम इस तरह का इन वर्ड से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. अगर हमें इससे क्वेश्चन पूछना हो हाउ वर्ड से, तो कैसे पूछोगे? हाउ आर यू. वो पूछते हैं ना, हाउ आर यू, हाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन. फिर हु इज सिटिंग विद यू, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, why you have not completed your work, या why you were absent yesterday, या why you are not giving answer, when will you do the work, when will you go to the market, when will this lockdown get over, when will this corona go. हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. Then what is your name, what will you eat today, where will you go, where are you going, where is your book, where is your pencil. Then which is your book. बहुत सारी बुक रखी है मान लो, तो उसमें पूछते हैं which is your book, which is your notebook, whom you have given your books, whom you have given your toys, whose book is this, whose pencil is this, whose eraser is this. ये इस तरह से हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं. इस तरह से हम क्वेश्चंस को इन वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस हम बनाते हैं, ठीक है. तो अब हमारा जो है एक्सरसाइज हम पहले देखेंगे, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट मी रब दिस फर्स्ट. बहुत मिल्की हो जा रहा है. Okay. First one is choose the correct question word and fill in the blanks. First exercise में क्या करना है? आपको blanks को fill करना है. Okay, you have to fill in the blanks. But कैसे blanks को fill करना है? You have to choose the correct question word. Bracket में question words दिए हुए हैं. You have to select question words from the bracket and then you have to complete the sentences. Okay. First one is choose the correct question words and fill in the blanks. Choose the correct question word and fill in the blanks. ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं. पहला वाला क्या है? डैश इज योर नेम. और हमारे पास ऑप्शंस क्या है?
what या when. Now you have to choose the correct word, correct question word. Blank is your name. Which question word will you select? What is your name या when is your name? क्या word होगा? What is your name या when is your name? आपका नाम कब है या आपका नाम क्या है? हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है? What is your name? What is your name? हम पूछेंगे What is your name? तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है? आपका नाम कब है कोई नहीं पूछता है ना, आपका नाम क्या है पूछते हैं. सो वी विल सेलेक्ट द वर्ड व्हाट. ठीक है, व्हाट इज योर नेम. नेक्स्ट, डैश इज द President of India. Children, whenever you ask question, we also put question mark. जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क भी जरूर डालना है, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे पास ऑप्शन है वाई, हु. WHY is why and WHO is who. Why, who. कौन सा हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? ब्लैंक इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दोनों को आप लगा के देखो. वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट क्यों है या इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, क्या होना चाहिए? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो हम कहेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम बोलेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये वाई नहीं पूछेंगे, हमें पता करना है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नंबर 3, डैश डिड द ट्रेन लीव. क्वेश्चन मार्क. When या which. When did the train leave या which did the train leave. ट्रेन कब यहां से मतलब प्लेटफॉर्म से खुली, स्टार्ट हुई. तो when या which. When did the train leave या which did the train leave. ऑफ कोर्स हम समय पूछते हैं, कब ट्रेन खुली यहां से, तो when did the train leave. हम यहाँ टाइम पूछ रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पर टाइम पूछ रहे हैं. चिल्ड्रन, जब भी हमें ये पता करना होता है कि कोई चीज कैसी है, ठीक है, हाउ, कोई चीज कैसी है या कैसे हुई, कैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम जब रीजन पूछते हैं या जब हमें पता करना होता है कि कोई चीज कैसी है, तो हम हाउ वर्ड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? हाउ. कैसे मतलब हाउ समथिंग हैपन, हाउ समथिंग इज. जब हमको पता करना होता है तब हम कोई चीज कैसी है, कैसा है, तब हम हाउ वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. जब हमें पर्सन पता करना है, व्हेन वी वांट टू नो कि किसने किया, द पर्सन, तब हम यूज करते हैं हु. ये चिल्ड्रन, जब सिर्फ ये व्हाट, हु और व्हेन लिखने से नहीं होगा, हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं.
हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया है इसका हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि हम क्यों वो क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम वेयर यूज कर रहे हैं तो वेयर क्वेश्चन वर्ड कब यूज होता है, हम वेयर कब यूज करते हैं, जब हमें कभी किसी प्लेस के या किसी पोजीशन के बारे में जानना होता है। ठीक है, जब हमें प्लेस या पोजीशन के बारे में पता करना होता है। वेयर इज द बुक, वेयर इज दिल्ली, वेयर इज वाराणसी, वेयर इज द पेंसिल। प्लेस या पोजीशन पता करना होता है तब हम वेयर वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हम हु कब यूज करते हैं, जब व्हेन वी आस्क फॉर सम पर्सन। हम जब पर्सन के बारे में हमारा क्वेश्चन होता है कि हु हैज डन दिस, हु इज देयर, हु विल डू दिस, जब हमारा क्वेश्चन किसी पर्सन के लिए होता है, व्हेन वी आस्क फॉर क्वेश्चन सम पर्सन। देन व्हाट कब यूज करते हैं हम, व्हेन डू वी यूज व्हाट, फॉर व्हेन वी आस्क फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। व्हेन वी आस्क फॉर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज योर नेम, जैसे ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट विल यू डू आफ्टर लॉकडाउन। तो हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो हम व्हाट यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम वाई यूज करेंगे, अभी हमने यूज नहीं किया है, ये वाई हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू नो द रीजन, जब हमको किसी चीज का कारण जानना है, जब हमको रीजन जानना होता है कि ये चीज क्यों हुई। वाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, why you are sitting here, why you have not gone outside. Okay, जब हम रीजन जानना चाहते हैं तब हम why पूछते हैं, when we want to know the reason. फिर उसके बाद when, when भी अभी हमने यूज किया, यहाँ पर है ये when. when हम कब यूज करते हैं, जब हमें समय का पता करना होता है, when we want to know for the time. जैसे यहाँ पर when है, हमें यहाँ टाइम पता करना है, कब, अब कितने बजे, आज, कल, एक महीना बाद, एक साल बाद, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद, जो भी वो। whenever we want to know the time we use the question word when. क्लियर? इसी तरह मतलब हमारे पास हर चीज का रीजन है कि हम कब कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। ओके, अकॉर्डिंगली वी विल यूज, ऐसे ही कुछ भी नहीं हमको यूज करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं फोर्थ, क्या है, डैश इज द फास्टेस्ट ट्रेन। Dash is the fastest train in India. और हमारा ऑप्शन है when या which. Now children, as you can read, blank is the fastest train in India. यहाँ पर हम क्या when यूज कर सकते हैं, when is the fastest train in India. क्या हमें कोई समय पता करना है, कोई टाइम जानना है, या हमें पूछना है कि कौन सी, विच वन, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम ऑप्शन वी यूज विच। हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से हमें एक के बारे में पता करना है तो हम विच यूज करते हैं। तो विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत सारी ट्रेन हैं, उनमें से कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन है। ठीक है, अमंग मेनी ट्रेन्स, आउट ऑफ मेनी ट्रेन्स, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे विच, क्योंकि हमें ऑप्शन में से जानना है कि कौन सी वाली जो ट्रेन है वो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में। गॉट इट? विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ओके, अब हम और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो लेट मी रब दिस, इसको मिटा देते हैं। आई होप यू हैव रेड दिस। व्हाट इज योर नेम, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हेन डिड द ट्रेन लीव, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ओके,
Now the fifth one. Blank teaches you English. Options है when या who. क्वेश्चन हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना सेंटेंस क्या है. डैश टीचेस यू इंग्लिश. डैश टीचेस यू इंग्लिश. अब यहाँ पे हमको पर्सन पता करना है कि जो इंग्लिश पढ़ाता है. तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन टीचेस यू इंग्लिश या हु टीचेस यू इंग्लिश. Of course, we will use who. क्यों who use करेंगे? Because we are asking for question for person. When we are asking for person, we use who. जब हमारा रीजन होता है कि हम पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, we want to know about the person, so we will use who. Who teaches you English? Here our query is about person. We are asking for person, so we will use who teaches you English. We want to know the name of the person who teaches you English. Okay. Then number 6 is blank do you go to school. Now here option is how या which. Now here blank do you go to school. Again sorry, question mark should be there. Now we want to know the mode, किस तरह से आप स्कूल जाते हो. तो which do you go to school नहीं है, हम यहाँ कौन सा स्कूल नहीं जानना चाह रहे हैं, कैसे जानना चाह रहे हैं. हाउ. सो हम यूज करेंगे हाउ. हमारा क्वेश्चन होगा हाउ डू यू गो टू स्कूल. मतलब हम ये जानना चाहते हैं कैसे. ठीक है. विच मोड डू यू यूज, हाउ डू यू गो टू स्कूल. हमको स्कूल का नाम नहीं जानना. अगर ये होता कि कौन से स्कूल जाना है तो बहुत सारे स्कूल में से विच वन, विच स्कूल डू यू. जब हमारे पास when we have variety of options, when we have many options and from that option हमें एक चुनना है, तब हम which यूज करते हैं. ठीक है. तो which school do you go, which is your school. Among many schools when somebody says which is your school, तब which होगा. लेकिन यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, how do you go to school. कैसे आप स्कूल जाते हो. ठीक. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा हाउ. हो गया. नाउ नंबर 7. Number 7 is dash is the time by your watch. ऑप्शन है when या what. ओके. हमारा क्वेश्चन है डैश इज द टाइम बाय योर वॉच. वॉच किसको बोलते हैं, वॉच मतलब होती है घड़ी. तो डैश इज द टाइम बाय योर वॉच मतलब तुम्हारी घड़ी के हिसाब से टाइम कब है या क्या है. तुम्हारी घड़ी के हिसाब से टाइम क्या है, कब है या क्या है. क्या बोलोगे, क्या है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. तुम्हारी घड़ी के हिसाब से टाइम क्या है, व्हाट. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. ठीक है. तुम्हारी घड़ी के हिसाब से टाइम क्या है. नेक्स्ट नंबर 8. dash is the
अक्षरधाम टेम्पल, AKSHARDHAM, अक्षरधाम टेम्पल। डैश इज द अक्षरधाम टेम्पल। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेयर या व्हेन। हियर वी वांट टू नो द प्लेस और द पोजीशन। यहां पर हमको प्लेस या पोजीशन जानना है, तो हम क्या कहेंगे, जब हमें प्लेस या पोजीशन जानना होता है तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, वी यूज वेयर। वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल, ओके। वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल, ओके। वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल, मतलब हमें जानना है कि प्लेस कहां पर है, अक्षरधाम कहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, डैश built the Humayun's, HUMAYUNSTOMB, dash built the Humayun's tomb। ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शंस हमारे क्या है, हु या वेयर, ओके। डैश बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब। चलो ये आपके लिए नया वर्ड है, हुमायूंस टॉम्ब। अब आपके बुक में ये है, इसलिए ये एक्चुअली में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट बोलो। हुमायूं एक मुगल एम्परर थे, हुमायूं एक मुगल एम्परर थे, तो उनका मकबरा को बोलते हैं टॉम्ब। मकबरा मतलब जहाँ पे उनको बेरी किया गया, मरने के बाद जब डेथ हुई तो जहाँ पर उनको दफनाया गया वो वहां पर टॉम्ब बना है। तो पूछा जा रहा है कि डैश द हुमायूंस टॉम्ब, तो हम यहाँ क्या पूछेंगे, हु बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब या वेयर बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब, किसने बनाया। वेयर इज द हुमायूं टॉम्ब नहीं है, बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब, वेयर इज यहाँ मिसिंग है, तो हम वेयर नहीं लिख सकते, हमको चूज करना है हु। क्यों, किसने, वी वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द पर्सन। हु बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब, किसने हुमायूं का मकबरा बनवाया। हु बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब, गॉट इट, किसने हुमायूं का मकबरा बनवाया। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन, तो हमें पर्सन का नाम जानना है। आई होप दिस इज क्लियर। हाउ डू यू गो टू स्कूल, what is the time by your watch। 8th one is where is the Akshardham temple, this is the name of the temple, Akshardham is a temple in Gujarat, okay, name of the temple Akshardham। then number 9 is who built Humayun's tomb, okay। Number 10, dash is the Humayun's tomb।
नाउ चिल्ड्रन, अभी वो ये क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपको समझा रही थी। पहला हमारा सेंटेंस क्या था? हु बिल्ट द हुमायूंस टॉम्ब, किसने हुमायूं का टॉम्ब बनवाया। और अब क्या है, यहाँ पर इज है, डैश इज द हुमायूंस टॉम्ब। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हु इज द हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब कौन है, नहीं। वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा किधर है, वेयर, वी वांट टू नो द प्लेस, हमको प्लेस जानना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। वी वांट टू नो द प्लेस, सो वी विल से वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ओके, नाउ हियर वी विल यूज वेयर। तो आज हमने ये 10 सेंटेंसेस किए चिल्ड्रन। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसका आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हम ये 10 सेंटेंस पर ही स्टॉप कर देंगे, एंड वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।